لدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی آپ کے سوالات لے کر حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ہاں آغا سید اسرار حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. تمام مومنین سے اپیل ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو نہ صرف بغور دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم علوم محمد و آل محمد پوری دنیا میں پھیلا سکیں. تو بلا کسی تاخیر کے، بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا. جی آغا صاحب، آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ استنجا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں، استنجا کا جواب دینے سے پہلے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ طہارت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. نوجوانوں سے میری بہت ہی زیادہ دردمندہ اپیل ہے کہ آج کے آپ کے سوالات کو اچھی طرح سنیں اور اس پہ عمل کریں. مقام پخانہ یا مقام پیشاب کو پاک اور صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا استنجا میں پیشاب اور پاخانہ دونوں کے لیے پانی ضروری ہے؟ بہت ہی اہم ترین سوال ہے. عالمین کی رحمت کا ایک فرمان ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر فشار قبر بہت زیادہ سخت ہوگا. ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو طہارت کی پرواہ نہیں کرتا. دوسرا بندہ وہ ہے جو اہل و عیال سے سختی کرتا ہے. اور تیسرا بندہ وہ ہے جو 14 کا ماننے والا ہو اور وہ داڑھی منڈواتا ہو. اس پر فشار قبر بہت زیادہ سخت ہوگا. تو اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جب معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتے تو بہت زیادہ ارمان لگتا ہے. میں عموماً دیکھتا ہوں کہ گلیوں میں، محلوں میں بچے ویسے پیشاب کر دیتے ہیں، پانی کا کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہوتا. اس سے نہ صرف ان کے کپڑے نجس ہوتے ہیں بلکہ ان کا وہ بدن بھی نجس ہو جاتا ہے جہاں پر وہ پیشاب کے قطرے وغیرہ لگتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں جواب دینا ضروری ہے کہ مقام پیشاب کو صرف اور صرف پانی کے ذریعے ہی پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے. دوسری فقہ میں تو لوگ ڈیلے وغیرہ، پتھر وغیرہ سے استنجا وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن فقہ محمد والے محمد میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. البتہ جہاں تک پخانے کا ذکر ہے تو وہاں پر آپ کو پانی میسر نہیں ہے یا آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے یا کوئی اور مجبوری ہے تو اس میں اتنی گنجائش ضرور ہے کہ پانی کے علاوہ بھی آپ کا وہ مقام پاک ہو جائے گا اور استنجا تصور ہوگا. تھوڑی بہت اگر سمیل بھی آتی ہے تو پھر بھی آپ اسے کامل استنجا ہی تصور کریں گے. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ استبراء سے کیا مراد ہے؟ فقہ محمد والے محمد میں خصوصاً استبراء جو ہے وہ ایک مستحب عمل ہے اور مردوں کے لیے مستحب ہے، عورتوں کے لیے بلکہ یہ ایسا کہہ دو عورتوں سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے. میرے نوجوان شیعہ بچوں کو سمجھنا اس کے بہت ہی ضروری ہے. تو میں اس کو سادہ الفاظ میں تھوڑا سا اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مقام پخانہ سے لے کر عضو تناسل کے آخری سرے تک وہ لائن یا وہ نلی جس میں منی یا کسی اور نجاست کے قطرے کا ٹھہرنا ضروری ہو، اس کو ان نجاست کے قطروں یا منی سے پاک کرنا استبراء کہلاتا ہے. جی آغا صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ استبراء کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح دینا چاہتا ہوں اور مومنین سے بھی اپیل ہے کہ سننے کی بجائے بلکہ وہ میری طرف دیکھیں گے. شرم کی وجہ سے نوجوان بچے بچیاں ایسے سوالات نہیں کرتے جس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ کیونکہ ابتدائی میں استنجا اور استبراء ہی سے طہارت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وضو ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے. جب ابتدا ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ نمازیں وغیرہ کہاں جائیں گی. تو استبراء کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مقام میں پخانہ یعنی مکر جہاں سے پخانہ برآمد ہو رہا ہے وہاں سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک
3 दफा इस तरह उंगली फेरते आना है, 2 3। इसके बाद आपने उज़्व तनासल की जड़ से लेकर सिरे तक 3 दफा इस तरह उसे मसलना कह दूं, रगड़ना कह दूं, या आप जो भी उसे नाम दे दें, ऐसा करना जरूरी है। जब ये 2 स्टेप हो गए तो इस्तबराक का तीसरा स्टेप यह है कि उज़्व तनासल के सिरे पर 3 दफा मसलना, मलना, या इस तरह ठोकर लगाना, और बाद मुज्तहिदीन के करीब 3 दफा खांसना मुस्तहब अमल है। जब ये आपका अमल सारा पूरा हो जाएगा तो आपने इस्तबरा कर लिया है। और इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई गंदा मनी वगैरह का कोई निजस कतरा आपके उस नाली में मौजूद भी है तो उसके बाद फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में वो निजासत नहीं होगी, बल्कि आपका वो जिस्म और बदन वगैरह पाक शुमार होगा। जी आगा साहब, अगला सवाल यह है कि क्या इस्तबरा वाजिब है और मर्द और औरत दोनों के लिए है? इसका जवाब मैं तकरीबन पहले दे चुका हूँ। इस्तबरा जो है ये वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है। पहले भी मैं किसी वीडियो में आपको गुजारिश कर चुका हूँ। मुस्तहब वो अमल होता है जिस पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकीद भी फरमाते हैं। तो इस्तबरा जो है ये वाजिब नहीं है लेकिन मुस्तहब अमल है, और मुस्तहब अमल करने के बाद जहन को भी सुकून मिलेगा, दिल को भी सुकून मिलेगा, और इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मर्दों से है, औरतों से इनका ताल्लुक नहीं है। जी अगर साहब, मर्द पर गुस्ल कब वाजिब होता है? गुस्ल वाजिब होने के लिए 2 शराइत का होना जरूरी है। नंबर 1, पहले तो जब मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करें उस वक्त अनजाल हो या ना हो, जब भी वो मुबाशरत करते हैं और मर्द का उद्व तनासल बीवी की शर्मगाह में दाखिल हो जाता है तो फौरन गुस्ल वाजिब हो जाता है। और दूसरी दफा उस वक्त वाजिब हो जाता है जब मादा मनविया या मनी वगैरह ख्वाब की हालत में खुद किसी नापसंदीदा अमल की वजह से, इशारतन मैं कह रहा हूँ, या किसी और वजह से खारिज हो जाती है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। जी अगर साहब, गुस्ल की कितनी किस्में हैं और इनके करने का तरीका क्या है? फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में गुस्ल की 2 किस्में हैं। एक को गुस्ल तरतीबी कहते हैं, दूसरे को गुस्ल इल्तमासी कहते हैं। तरीकाकार बहुत ही सादा है और बच्चों से खसूसन अपनी बहनों बेटियों से भी अपील है कि वो भी इन्हें समझने की कोशिश करें। जब तक वो गुस्ल को ठीक नहीं करेंगे न उन्हें सुकून मिलेगा, न रिज्क में बरकत आएगी, और न ही उनके बदन से खुशबू आएगी। पहला तरीका जो है उसे हम गुस्ल तरतीबी कहते हैं। तरतीबी से मुराद यह है कि तरतीब के साथ। उसका तरीकाकार यह है कि सर को अपनी गर्दन तक धोना, फिर दाहिने हिस्से को धोना, फिर बाईं तरफ को धोना, और ख्याल रखना कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा न हो जहां तक पानी न पहुंचा हो। 1 दफा इस तरह करना वाजिब है और 3 दफा करना मुस्तहब है। और दूसरे गुस्ल का नाम है गुस्ल इल्तमासी, जहां पर पानी ज्यादा हो, नहर हो, दरिया हो, रजबा हो, इवन बहुत से ऐसे ट्यूबवेल भी होते हैं जिसके सामने हौज वगैरह बने हुए होते हैं, उसमें गोता लगाना, इस गुस्ल को हम गुस्ल इल्तमासी कहते हैं। जी अगर साहब, अगला सवाल ये है कि क्या गुस्ल करने से पहले निजासत को दूर करना ज़रूरी है या निजासत को अलहदा दूर करने की ज़रूरत नहीं है? फिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ने खसूसी तौर पर एहतियात वाजिब ये है कि जब भी आप गुस्ल तरतीबी कर रहे हों तो नजासत को पहले दूर कर दें, लेकिन जब गुस्ल इल्तमासी कर रहे हों, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो निजासत को अलहदा तौर पर दूर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप गोता मारेंगे आपका गुस्ल भी ठीक होता जाएगा और निजासत वगैरह सब कुछ दूर हो जाएगी, और उसमें निजासत को अलहदा दूर करने की ज़रूरत गुस्ल इल्तमासी में नहीं रहती। जी अगर साहब, क्या गुस्ल करने से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है? गुस्ल करने से पहले
आप पहले का पूछ रहे हैं, मैं बाद का भी बता देता हूँ। गुस्ल करने से पहले या बाद में वुज़ू का करना कोई ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मुस्तहब अमल यह है, जब आप गुस्ल कर रहे हों तो उस वक्त दोनों हाथ धो लें, 3 दफ़ा नाक में पानी डाल दें, 3 दफ़ा कुल्ली वगैरह कर लें, तो ये मुस्तहब अमल होगा। आप भी मुतमईन हो जाएंगे और आपका गुस्ल मुस्तहब से ये मुराद है कि बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। अदरवाइज वुज़ू वगैरह की ना पहले ज़रूरत है ना बाद में ज़रूरत है। जी अगर साहब अगला सवाल ये है कि क्या गुस्ल में एक दफ़ा पानी डालना काफ़ी है? वाजिब जो है वो तो 1 दफ़ा है, लेकिन अगर कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो 3 दफ़ा करना मुस्तहब है। उससे आपकी एहतियात भी हो जाएगी और आपको जो शक वगैरह पड़ेगा वो भी दूर हो जाएगा। जी अगर साहब अगला सवाल ये है कि क्या खड़े होकर या कपड़ों से भी गुस्ल किया जा सकता है? खड़े होकर या कपड़ों समेत ही गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कपड़े वगैरह वो पानी को आपके बदन के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में मदामत न करें, तो इस तरह आपको गुस्ल करना ठीक तस्वर होगा। जी अगर साहब गुस्ल की नीयत कैसे करनी चाहिए? गुस्ल करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लाह, लेकिन इसके बाद अगर नमाज का टाइम हो गया तो वाजिब का इजाफा कर दे तो बेहतर है। लेकिन अगर आप उसका इजाफा नहीं भी करेंगे तो फिर भी गुस्ल की नीयत ठीक होगी और आपका किया जाने वाला गुस्ल भी ठीक तस्वर होगा। जी अगर साहब क्या गुस्ल के दौरान ख़वातीन के लंबे सारे बाल धोना ज़रूरी हैं? क्योंकि ख़वातीन के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और वहाँ तक हो सकता है पानी पहुँचाना मुश्किल भी हो, तो इन हालात में इतनी गुंजाइश है कि गुस्ल के दौरान वही बाल जो सर तक होते हैं या सर के करीब तर होते हैं उनको धो लेना काफ़ी होता है और उनका गुस्ल ठीक शुमार होगा। जी अगर साहब क्या गुस्ल से पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना वगैरह ज़रूरी हैं? ये मेरे ख्याल में पहले बता चुका हूँ। ऐसा कर लें तो ये मुस्तहब अमल है और आपके इस गुस्ल वगैरह के सवाब में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर न भी किया जाए तो वाजिब नहीं है, इनका करना ज़रूरी नहीं है और इनके बगैर ही किया जाने वाला गुस्ल सही तस्वर होगा। जी अगर साहब हदस से असगर और हदस से अकबर में क्या फ़र्क है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है, नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझें। हदस से असगर हर वो अमल या वो चीज़ होती है जिसके बाद वुज़ू वाजिब हो जाए उसे हम हदस से असगर कहते हैं। मसलन री का खारिज होना, पेशाब का करना, पखाना वगैरह का करना, ये हदस से असगर में आते हैं। और हदस से अकबर से क्या मुराद है? हर वो अमल या हर वो चीज़ जिसके बाद गुस्ल वाजिब हो जाए, जैसे मनी वगैरह का निकलना, अगर ये निकल आए उसके बाद वुज़ू से सिर्फ पाक साफ नहीं हो सकता बल्कि गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो इस हदस को हम हदस से अकबर कहेंगे। जी अगर साहब आज की हमारी नशिस्त का आखिरी सवाल है, क्या गुस्ल के दौरान हदस से असगर हो जाए तो गुस्ल को अज़सर नौ करना पड़ेगा? आप गुस्ल कर रहे हैं, री वगैरह खारिज हो गई है या आपको पेशाब आ गया या पखाने की ज़रूरत महसूस हो गई है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोबारा गुस्ल शुरू करें। जहाँ तक आपने कर लिया है वहीं तक काफ़ी है और उसको आप आगे चलाते रहें। लेकिन वही बात फिर आ गई है, अगर उसके बाद आपने नमाज पढ़नी है तो नमाज के लिए वुज़ू का होना ज़रूरी है, तो उसके गुस्ल के बाद अगर आप वुज़ू वगैरह इस री की वजह से कर लेंगे तो वो मुनासिब और बेहतर है और उसी के साथ ही फिर आप नमाज अदा करेंगे। मोमिन से आखिर में अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन और ख़ुसूसन इस नौजवान बेटे रज़ा मूसवी को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। लदू वाली अल वाली इश्क़ फातिमा मुर्तज़ा वाली।